हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. So this is the biology class for first year HSSC 1. So the first chapter which is going to start is acellular life, right? Chapter number 5. I'm going to start from the chapter number 5, acellular life, the first lecture from chapter number 5. So before starting the chapter in detail, I mean the first topic of the chapter, I want to know something about a few questions, like your prior knowledge, right? What do you have any idea about these simple questions, or actually what do you know about viruses? So the very first question is, what is a virus? A very simple question. Difference between prokaryote and eukaryote. What do you know about the status of virus? Name some viral diseases and treatment for viral diseases. So if you know the answers of the question, then it means that you are in a good condition information wise. And if you are having difficulty in finding the answers, you can write me in comments and you can contact me. Okay, Ji. So if you know the answers, so please note them down on your notebooks. So let's start with the chapter. So the name of the chapter is Acellular Life. Starting from the name of the chapter, इसका नाम है acellular, right? The word letter A over here is without. It means without life, without cell. We are discussing a life which do not have cell, right? हालांकि हम तो हमेशा से पढ़ते आए हैं cell is the basic unit of structure and functional unit of life वगैरह वगैरह इस किस्म की बातें हम करते रहते हैं. All life form are made up of cells, but this time we are discussing a life which do not have cell. Okay, so there are 3 different examples discussing in this chapter, and क्या पता कोई और भी हो, लेकिन अभी तक नॉन ए सेल्यूलर लाइव्स में यही तीनों है. नंबर 1 इज वायरस. अनदर नेम फॉर वायरस इज वायरियन. अनदर नेम फॉर वायरस इज वायरियन. तो कहीं आपको वायरियन नजर लिखा हुआ आए तो आप समझ जाएं कि इट इज दे आर टॉकिंग अबाउट वायरस, राइट? इट इज एन इक्विवेलेंट टर्म, राइट, for virus as well. So the other is viroid and then is prion. सो लेट्स स्टार्ट विद द वायरस. वायरस को तो भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल करने वाले हैं. पूरे चैप्टर में हमने वायरस ही करते रहना है, तो सिर्फ फिगर्स दिखा रही हूँ. सो दिस इज अ वायरस ऑफ HIV हैविंग स्पाइक्स. सेम इज द केस विद द हेपेटाइटिस वायरस, हैज सम स्पाइक्स ऑन इट. दिस इज एबोला. These are longitudinal strands. And then this is adenovirus. It is hexagonal, polyhedral, by the way, polyhedral and vertex space के स्पाइक्स हैं. इसके ऊपर भी स्पाइक्स हैं, मतलब all of them have spikes. Basically spikes are used for the attachment with the host. आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. And this is a bacteriophage. We will discuss all of them in detail. Then is the prion. Prion is PR. इसमें जो PR है, it is from proteins, and ION is from the infection. ठीक है? So these are infectious proteins. Infectious proteins. और इसके साथ जो दूसरी फिगर बनी हुई है ये वाली, this is the disease protein. ये normal protein आपके अपने जीनोम में प्रेजेंट है, ठीक है, या किसी के भी जीनोम में प्रेजेंट है. लेकिन जैसे ही ये डिजीज प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है, ये हमारी नॉर्मल प्रोटीन एक्टिव हो जाती है और मिसफॉर्म्ड प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देती है. आई विल डिस्कस इट इन डिटेल लेटर इन द चैप्टर, जब भी ये टॉपिक आएगा. देन इज द वायरॉइड. देन इज द लास्ट टॉपिक, लास्ट पार्टिकल इज वायरॉइड. जो वायरॉइड है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शियस RNA है, ठीक है. मैंने भी आपको वायरस का स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं किया. वायरस है, वायरस की बॉडी में सिर्फ दो, वायरस के जो वायरस पार्टिकल है, जो उसके पार्टिकल में सिर्फ दो चीज़ें हैं. वन इज द DNA and other is protein, right? These two things are present in the overall structure of the virus, but while prions are just the proteins and viroids are just RNA molecules, right? All of the non-viroids are responsible for producing diseases in plants, right? All of the non-viroids, जितने भी आज तक non-viroids हैं, सब के सब plants को diseases करते हैं, except HDV. HDV, which is hepatitis D virus, it is a viroid. It produces disease in human beings, right? So this is an only example. Okay, so ये तो था acellular life कौन कौन सी है. आगे चलते हैं. आगे जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस. पहले यहाँ पे कुछ वायरसेस के नाम लिखे हुए हैं. इनमें पहला है इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू एंड डेंगू फीवर.
ठीक है। सो इन्फ्लुएंजा इट्स अ कॉमन कोल्ड, आपको पता है सबको बारी बारी घर में, एक को घर में हो जाए तो सबको होगा। इट मीन्स द डिजीज इज हाईली कॉन्टेजियस, मीन्स हाईली कम्युनिकेबल, फॉरन छूने से और इस तरह फॉरन फैलती है। क्यों? क्योंकि जब भी आप स्नीज करते हो या आप कफ करते हो तो वो इससे बेसिकली तो स्नीजिंग ही है इसमें, स्नीजिंग करते हो तो या वो आप या जो भी मटेरियल आपके मुंह से या नाक से आपके हाथ में लग गया और आपने अपने हैंड्स प्रॉपर्ली वॉश नहीं किए तो वो आप बड़ी आसानी से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर देते हो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो जिस तरह भी कोरोना फैल रहा था बिल्कुल इसी तरह इन्फ्लुएंजा भी वैसे ही है, लेकिन इन्फ्लुएंजा इट्स नॉट दैट मच फेटल, तभी हमें इसकी बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं होती। एनीवेज ये भी एक वायरल डिजीज़ है, और अगर आप इसको टाइम दें, अपनी बॉडी को आप अच्छी डाइट लेके इसको खुद से ठीक होने दें तो फिर ये आपको नेक्स्ट ईयर नहीं होता, आप स्ट्रॉन्ग इसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो। देन इज द बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू इज ऑब्वियसली एवियन फ्लू, बर्ड्स को होगा। आप सुनते हो कुछ दिनों में हम सुनते हैं कि इन दिनों चिकन नहीं खाना, क्यों? क्योंकि उनको फ्लू हुआ हुआ है, सही। तो वो बेसिकली ऑल ऑफ द वायरसेस, नॉट ओनली द वायरसेस, ऑल ऑफ द पैरासाइट्स आर host specific, right? All of the parasites are host specific. तो हमें भी बर्ड फ्लू खाने से फ्लू नहीं हो जाएगा, लेकिन बाय द चांस अगर आपके अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ तो फिर आपके लिए बर्ड फ्लू आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देन इज द स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू इज द फ्लू ऑफ द कैटल्स और पॉर्क, इस तरह के सारे जो मैमल्स हैं उनका है ये, और ये भी टाइप ऑफ फ्लू है, उन दिनों हमें इनसे भी ज़रा दूर रहना चाहिए। देन इज़ द डेंगू फीवर। आप तो काफ़ी आप लोगों की तो इंफॉर्मेशन में है ये, क्योंकि ये बहुत हर साल हो जाता है आजकल पाकिस्तान में। तो इसके लिए एक आपको वो भी चाहिए, इसकी ट्रांसमिशन के लिए एक मॉस्कीटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू फीवर। एडीज एजिप्टाई काफ़ी मशहूर है, तो आपको इसके बारे में काफ़ी बातें पता है, और वो भी एक फीवर है जो कि वायरस कॉज करता है, वो हिमरेजिक है, और वो उसमें आपका नंबर ऑफ प्लेटलेट काउंट, जो प्लेटलेट काउंट है हमारा वो कम हो जाता है और हमारी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है बॉडी के डिफरेंट ओपनिंग से, अगर आपने फौरी तौर पर इसको क्योर नहीं किया तो। Then viruses cause diseases in both animals and plants. Obviously plant viruses भी हैं, bacterial viruses भी हैं, animal viruses भी हैं, and I have already told you that all of the viruses are host specific. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके यहाँ लिखे हुए हैं, दैट वायरसेस आर ए सेल्यूलर, मैं बता चुकी हूँ वायरसेस के पास कोई सेल नहीं है। जब भी सेल की बात होगी तो इसका मतलब होगा प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, मींस हैविंग सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और नो न्यूक्लियस, व्हाटएवर, मगर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मगर वायरसेस में हमने देखा ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके पास सिर्फ आउटर बाउंड्री है या अंदर डीएनए है। So they are not capable of independent replication, ये मैं थोड़ी देर में explain करती हूँ। They are unable to synthesize their proteins and energy, and they cannot be seen without they cannot be seen without electron microscope, by the way, and they cannot be seen under light microscope, आप electron microscope के थ्रू इन्हें देख सकते हो। ये एक रीडिंग मटेरियल मैंने सिर्फ डाला हुआ है, सो जब आप सारा ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लूँगी मैं तो आप इसकी रीडिंग एक दफ़ा लेना, इट्स अ गुड मटेरियल फॉर रीडिंग। Okay ji, now characteristics of viruses में now I'm going to discuss the living characteristics. So we consider viruses living because they have a genome like DNA और RNA. सबसे पहला पॉइंट यही होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिविंग होने का कि उसके पास DNA है या नहीं। सो डीएनए आपको पता है इज कंसिडर्ड एज द हेरिडिटरी मटेरियल। वैसे तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछती अगर आप लाइव होते। सो डीएनए इज कंसिडर्ड एज द लिविंग मटेरियल बिकॉज डीएनए इज द ओनली मॉलिक्यूल दैट हैव द कैपेबिलिटी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। DNA is the only molecule that have the capability to replicate itself. That is why DNA is considered as a hereditary material, while RNA is considered or it is used as hereditary material only in case of viruses. No other organism have RNA as hereditary material, right? सिर्फ वायरसेस में, कुछ वायरसेस, बल्कि कुछ वायरसेस से मुराद ये जो वायरॉइड्स अभी मैंने आपको बताए थे ये सारे आरएनए थे। इसी तरह कुछ और वायरसेस भी हैं उनमें भी आरएनए है, और मतलब कि हेरिडिटी के केस में सिर्फ वायरसेस हैं जिनमें आरएनए एज हेरिडिटी मटेरियल कंसिडर होता है। बाकी तमाम तर ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ही है जो हेरिडिटी मटेरियल है। अब इस मटेरियल की वजह से हम इसको लिविंग कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये अपनी रेप्लिकेशन करवा सकता है बाकी चीज़ों को कंपेल करके।
सो इसके अलावा अब हमने देखा इतने डिफरेंट वेराइटीज और इतने ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रेन्स मौजूद हैं वायरसेस के. तो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि इट इज़ केपेबल ऑफ डूइंग रेप्लिकेशन वन और द अदर मीन्स. वो अभी हमें नहीं पता, लेकिन वो कर तो रहा है, तभी तो उसकी इतनी ज़्यादा वेराइटीज, इतनी ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रेन्स हमें देखने को मिल रहे हैं और वो लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनकी नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं. देन रिप्रोड्यूस यूजिंग मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ होस्ट. ओके, ये लाइन मैं डिस्कस करूंगी विद द नेक्स्ट लाइन. दैट इज द टर्म यूज फॉर द पैरासाइट्स, राइट. वायरसेस के लिए एक टर्म यूज होती है इंट्रासेल्युलर ऑब्लाइगेट पैरासाइट. बेसिकली ऑब्लाइगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है. ये पैरासाइट का मीनिंग तो आपको आता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी बॉडी में एंटर हो जाए और उस बॉडी में जाके क्या करे, उस बॉडी में एंटर हो जाए और एंटर होने के बाद क्या करे कि वो उसका फूड ले, शेल्टर ले, स्पेस ले, सब कुछ उससे करे और इन रिटर्न उसको परेशानी दे दे, इन रिटर्न उसको तकलीफ दे दे, बीमारी कर दे, तो उसको तो हम कहते हैं पैरासाइट. यहाँ तक हमें एक पॉइंट क्लियर हो गया. दूसरी टर्म इसमें इंट्रा सेल्यूलर. द वर्ड इंट्रा मीन्स विद इन अ सेल, किसी एक सेल के अंदर, और सेल्यूलर तो सेल यानी कि सेल के अंदर रहेगा. ये एक ऐसा पैरासाइट है जो किसी सेल में रहेगा. और ऑब्लाइगेट यानी कि इसको अपनी लाइफ गुजारने के लिए कोई लिविंग सेल चाहिए ही चाहिए. ठीक है, इस पे फर्ज है, ये कंपेल्ड है, मजबूरी है इसके ऊपर कि इसको कोई ना कोई होस्ट का लिविंग सेल चाहिए, अदरवाइज ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता. ये ऐसा पैरासाइट है जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन है टू बी इन अ लिविंग सेल. ठीक है, सो द ऑपोजिट टर्म फॉर द ऑब्लाइगेट पैरासाइट इज फैकल्टेटिव पैरासाइट. ये एक ऐसा पैरासाइट है जिसे अगर अपना होस्ट मिल गया तो ठीक है, वरना नहीं मिला तो वो फ्री लिविंग रहेगा. पर वायरसेस के केस में ऐसा नहीं होता. वायरसेस क्या करते हैं, वो पैरासाइट होते हैं और वो वो तभी लिविंग होते हैं जब किसी होस्ट में होते हैं. अदरवाइज अगर वो किसी होस्ट में ना हो तो वो नॉन लिविंग के तौर पे बिहेव करते हैं, वो पत्थर बन जाते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के हो जाते हैं. ये मैं आपको थोड़ी देर में डिस्कस करूंगी भी. तो इससे पिछला पॉइंट था ना, जो रिप्रोड्यूस यूजिंग मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ होस्ट, दैट इज वाई वी कॉल देम एज इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट, क्योंकि ये ऐसे पैरासाइट्स हैं जिनके पास ना अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं है ना. व्हाट इज बायोसिंथेटिक मशीनरी? They need cytoplasm, they need ribosomes for the production of proteins. replication के लिए enzymes चाहिए, proper environment चाहिए, messenger RNA बनाना है, messenger RNA से उसको copy translation करानी है, means कि translation कराने के लिए जो सारा environment और जो सारा ऑरा चाहिए वो सब इसके पास मिसिंग है. ठीक है ना, तो वो इसलिए डिपेंड कर रहा है होस्ट की मशीनरी के ऊपर. तो जाके होस्ट की बॉडी में एंटर होके ये होस्ट के ऊपर कंट्रोल कर लेता है. वो मैं आपको आगे इसकी लाइफ साइकिल्स में एक्सप्लेन करूंगी. और ये भी इजीली यूवी रेडिएशंस के थ्रू, इजीली तो खैर नहीं, लेकिन यूवी खास यूवी रेडिएशंस के अंदर इसकी डेथ हो जाती है, जैसे नॉर्मल डीएनए की भी डेथ हो जाती है. Then are the non-living characteristics of viruses. So they lack cellular structure. इनके पास कोई cellular structure नहीं है, तो it means कि non-living हो गए, क्योंकि बाहर survive नहीं कर सकते. एंजाइम्स नहीं है, को एंजाइम्स नहीं है, कोई मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं है, तो इसलिए हम इन्हें नॉन लिविंग समझ रहे हैं. और स्टोर हो जाते हैं कहीं पे भी, बॉटल्स में क्रिस्टलाइज हो जाते हैं. मीन्स मैं बताई थी ना, स्टोन की तरह बन जाते हैं. जैसे हमने दाल चावल ला के अलमारी में नहीं रख देते, वो बेचारे डोरमेंट फेज में चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही अगर आप उन्हें सो करोगे तो वो प्लांट्स में न्यू प्लांटलिंग्स उसमें से निकल आएंगी और फिर न्यू प्लांट्स बन जाएंगे. वो सेम इज द केस विद द वायरसेस, जब तक कि एनवायरमेंट नहीं मिलता वो भी डोरमेंट रहता है. Do not respire outside the host, act as non-living infectious particle. Obviously non-living होता है और non-infectious particle के तौर पे behave करता है. And no cellular structure as well. And the history and discovery we will discuss in the next lecture. यहाँ पे एक term discuss हुई है, the meaning of the virus. The meaning of the virus is as the word virus is derived from the Latin word, and in Latin it is called, it means venom. Venom means poison, means the word virus means poison. So the term was used for infectious diseases which have unknown cause. शुरू में ऐसे होता था क्योंकि माइक्रोस्कोप्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कुछ नज़र ही नहीं आता था, तो लगते थे, लोग समझते थे कि ऐसे इसके ऊपर जिन आ गया या क्या हुआ है, मगर लोग दिनों में बीमार होके ख़त्म हो जाते थे. तो कोई इलाज नहीं था, कुछ समझ नहीं आता था. बट लेटर ऑन जैसे जैसे माइक्रोस्कोप्स बनती रही, जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई, तो हम इन सब चीज़ों से अवेयर होते चले गए. ओके जी, थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिस्कवरी और स्ट्रक्चर बताऊंगी. जी, आई थैंक यू ऑल. थैंक यू फॉर द पेशेंस लिसनिंग. एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी फ्रीली. अल्लाह हाफिज.